हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड देयर आइसोमेरिज्म। Students, I am going to discuss with you nomenclature, which contains certain set of rules to write the IUPAC name of coordination compounds, and we will also discuss isomerism in coordination compounds. In isomerism, we will discuss in detail structural isomers as well as geometrical isomers. So let's start with the video. What are the rules for IUPAC name of compounds? Students, there are certain set of rules that we will follow to write the IUPAC name. Let's read it one by one. First, when naming a complex ion, the ligands are named before the metal ion. Students, जब हम ligands के name लिखेंगे for a complex ion, तब हम ligand का नाम metal ion से पहले लिखेंगे. Next one is write the names of the ligands in the following order. First of all, we will write the name of the neutral ligand students. उसके बाद हम नेगेटिव ligand जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है, न्यूट्रल जैसे कार्बोनिल वाटर है, इनके नाम हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव जैसे हेलोजेंस है, इनके नाम हम बाद में लिखेंगे. एंड देन फाइनली द पॉजिटिव ligand जैसे नाइट्रोनियम है, हाइड्राजोनियम है, इनके नाम हम बाद में लिखेंगे. If there are multiple ligands of the same charge type, अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारे पास ligands होते हैं उनका चार्ज टाइप सेम होता है, then they are named in the alphabetical order. अब उनका नाम हम alphabetical order में लिखेंगे rather than considering the numerical prefixes. हम डाई ट्राई वर्ड को देखते सार नहीं हम उसका नाम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, बल्कि हम अल्फाबेटिकल उसके अल्फाबेट्स को देख के हम उनका नेमिंग करेंगे ligands की. Then multiple occurring monodentate ligands receive a prefix according to the number of occurrences. देखिए स्टूडेंट्स, जो मल्टीपल अकरिंग मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है, उनको हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड से हम उसका नाम स्टार्ट करेंगे. अब जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है स्टूडेंट्स, जैसे इथिलीन डायमीन है या फिर ऑक्सलेट है, अब देखिए इसमें जो इथिलीन डायमीन है इसमें dia word is already present in its name. Then we will not write the dia word again. Rather than the dia word, we will write bis word for it. जैसे tri word present होगा किसी में, then we will write tris. If tetra is present, then we will write tetrakris and so on. Another one is in anions, remove the final e when the anion ends with 8. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये एग्जांपल है सल्फेट, ये कह रहा है कि जो अनाइंस हैं जिनमें ये एंड करेगा 8 वर्ड से, इसकी हम फाइनल ई रिमूव करके वी विल राइट द वर्ड ओ. देन सल्फेट विल बिकम सल्फेटो एंड रिप्लेसेस आइड वर्ड विद आइडो. जैसे कि लाइगेंड हमारा साइनाइड, इसमें जो आइड वर्ड है इसकी हम ई को हटा के ओ लगा देंगे, देन आइड विल बी रिप्लेस्ड विद आइडो. So cyanide becomes cyanido. Neutral ligands are given their usual name. जब हम neutral ligands को naming में लिखेंगे, हम उसको usual name से ही लिखेंगे जो उनका name already present होता है. जैसे ethylene diamine है, उसको हम ethylene diamine ही लिखेंगे, except for some exceptions. जैसे कि अमोनिया है, उसमें उसको हम अमीन वर्ड से लिखेंगे. अब जो अमोनिया है स्टूडेंट्स, जब हम इसको अमीन वर्ड इसका लिख रहे हैं, then we will write mean with double m, not with single m. and water को हम लिखेंगे aqua और aquo, and CO will become carbonyl, and NO को हम लिखेंगे nitrosyl. So आपको ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं इनके नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, because they repeatedly used in the coordination entities. अगर हम इसका नाम नहीं अच्छे से याद करेंगे तो then we will not be able to write the IUPAC name. और ये frequently questions with neutral ligands के साथ coordination entity में दिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में और पूछे जाते हैं. स्पेशली ये अमोनिया जो है, इसको जब हम अमीन लिखते हैं तो एक ऑप्शन में तो आपको डबल एम दे देंगे और एक ऑप्शन में आपको सिंगल एम दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए. सो यू शुड टेक द ऑप्शन विद डबल एम, नॉट विद सिंगल एम. Now, write the word of the central atom or ion. If the complex is an anion, the central atom's name will end in "ate" and its Latin name will be used if available.
स्टूडेंट्स ये अब कह रहे हैं कि जब हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि अनायनिक है, अब जब अनायनिक है तो जैसे निकल है प्रेजेंट होगा कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी में और वो अनायनिक हो गई तो उसके पीछे हम 8 वर्ड लगा देंगे, द निकल विल बिकम निकलेट। अगर लेटिन नेम कुछ प्रेजेंट होगा जैसे कि आयरन का प्रेजेंट होता है तो उसको हम आयरन की जगह फेरेट वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट्स। सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द लेटिन नेम्स आल्सो। जैसे सिल्वर का भी हम लेटिन वर्ड यूज करते हैं, गोल्ड का भी हम लेटिन वर्ड यूज करते हैं, आयरन इज देयर एक्सेप्ट फॉर मर्करी। स्टूडेंट्स मर्करी के लिए हम ये जो हमारा रूल है ये हम यूज नहीं करेंगे। If the central metal atom's oxidation state needs to be specified when it is one of several possible or zero, write it as Roman numeral or zero in parentheses. अब देखिए स्टूडेंट, जब हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखते हैं then it is always mandatory to write its oxidation state in Romans, not in simple numerals students, and that too in parentheses. अगर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेटस जीरो भी है then also we will write zero in parentheses. So you should know how to take out the oxidation state and use that oxidation state in parentheses in Roman numerals. End with cation और anion as separate words. अब देखिए कुछ कैटाइनिंग एंटिटी होगी, एक अनायनिक एंटिटी भी होगी, उन दोनों को हम सेपरेटली लिखेंगे with some space. उनको हम इकट्ठा करके jointly नहीं लिखेंगे, rather we should create some space between the cationic IUPAC name as well as anionic IUPAC name. Names of some common ligands. स्टूडेंट्स अब हमें पता होना चाहिए कि जब ligands को हम कॉम्प्लेक्स आयन में लिख रहे हैं तो उसके क्या कैसे या फिर क्या नेमिंग होगी उसकी. So we should remember that also while writing the IUPAC name of the coordination compounds. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अनायनिक लिगेंड्स हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज है जैसे कि हेलोजन है स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे, जैसे ब्रोमीन है इसको हम लिखेंगे ब्रोमो, फ्लोरीन को हम लिखेंगे फ्लोरो, O2 नेगेटिव को हम लिखेंगे ऑक्सो, OH नेगेटिव को हम लिखेंगे हाइड्रोक्सो, Cn नेगेटिव will be written as cyano, C2O42 negative will be written as oxalato. Then we have CO32 negative with carbonato word and CH3CO negative with acetato word. स्टूडेंट्स अब एक जो कॉमन चीज है इन सब में जो कि अनायनिक लिगेंड्स है इनमें ये है कि ऑल आर एंडिंग विद द वर्ड ओ. जो जितने भी अनायनिक लिगेंड्स हो गए दे विल एंड विद द वर्ड ओ. सो यू शुड रिमेंबर दैट. अगर आपको उल्टा भी आता है कि आपको IUPAC नेम दिया हुआ है और आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर तो वहां पे ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो ऑक्सीलेट ऐसा वर्ड लिखा होगा तो वो एक अनायनिक लिगेंड होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा. Then we have neutral ligand students. देखिए अब जो NH3 अमोनिया है उसका हम वर्ड लिखेंगे अमीन विद डबल एम, H2O को हम लिखेंगे एक्वा, NO को हम लिखेंगे नाइट्रोसाइल, Cu will be written as carbonyl, O2 will be written डाइऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीजन लिखते थे उसको हम डाइऑक्सीजन लिखेंगे, N2 similarly will be written as dinitrogen, C5H5N will be written simply as pyridine, which is a very good neutral ligand. NH2CH2CH2NH2 will be written as ethylene diamine. अब इसका जो है नाम हम सिंपली जैसे हमने देखा न्यूट्रल लिगेंड्स को जो हम रूल्स पढ़ रहे थे कि वैसा ही लिखना है विदाउट एनी चेंज, तो NH2CH2CH2NH2 will be written as ethylene diamine. Now, how to write the names of the positive ligands? First of all, NH2NH3 positive will be written as hydrazinium. देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो पॉजिटिव लाइगेंड्स होंगे इनमें एक कॉमन बात ये हो गई जैसे कि अनायनिक लिगेंड्स थे उसके बाद हम O वर्ड यूज कर रहे थे, while in positive ligands we will end the name of the ligand with IUM. So NO2 positive will be written as nitronium, NO positive will be written as nitrosonium. Now we have names of numerical ligands. अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जो नंबर हमें दिए होते हैं जो कि ligands के बाहर लिखे होते हैं उनके लिए हम कैसे prefixes यूज करेंगे. So we should know that also. If number one ligand is given, it will be written as mono. If two ligands are given, it will be written with the word di,
और bis, अगर di word is already present, जैसे कि हमने देखा इथिलीन diamine में di word is already present, then we will write the word bis. If 3 ligands are there, tri or tris. Similarly, जैसे हमने di में देखा. 4 tetra or tetrakis. Similarly, 5 penta or pentakis. 6 for hexa or hexakis. 7 for hepta. 8 for octa. 9 for nona or enia. 10 for deca. 11 for undeca and 12 for dododeca. स्टूडेंट्स जनरली आपको जो एग्जाम्स में 12 से ज़्यादा जो है लाइगेंड्स नहीं आपको देंगे, तो जितने भी ये 1 to 12 तक इनके नाम लिखे हुए हैं इतना ही आपको पता होना चाहिए, इतना ही आपके एग्जाम में आएगा. सो वी शुड बी वेल वर्स्ड विद न्यूमेरिकल लिगेंड्स ऑल्सो, कि हम उसको कैसे नेमिंग में हम यूज करेंगे. चलिए देखते हैं आप क्वेश्चंस pertaining to IUPAC नेम. Write a proper chemical name for each of the following coordination entity. First of all, we have NiCl4 2 negative. Students, अब देखते सर आपको पता लग जाना चाहिए कि इस coordination entity के बाहर लिखा हुआ है 2 negative. It means it is an anionic coordination entity and the central metal atom's name will end with 8. जैसे निकल है तो निकलेट होगा. अगर इस ligand के बात करें जो कि chlorine ligand है, these are 4 in number. So we will write the numerical prefix tetra, right? So the answer will be, or the IUPAC name will be tetrachlorido. We can write chloro word also. Nicolate, as I've told you, there is a 2 negative charge outside the coordination entity. So we will write the central metal atom's name ending with 8. Along with that, very important, we have to write in Roman numerals in the parenthesis its oxidation state. That will take out, like we have 4 chlorine over here and we have 2 negative, so X will be 2. And we will also write the word ion. If you will not write the word ion, then your half marks will be deducted in your board, as writing ion is very important, as you know that it is a coordination entity which is ionic in nature. So we have to write the word ion. So the complex ion and anion is inside the parenthesis. We have to add the fix 8 जो कि हमने किया निकलेट में in the name of the metal. So अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे तो आप जो IUPAC नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वो इजीली लिख पाएंगे, और जो सेट ऑफ रूल्स हैं अगर उसको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो जो आपका IUPAC नेम है वो गलत नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव PT NH3 whole twice Cl4. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है जो कि न्यूट्रल है. अब इस पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं है, तो हम जो 8 वाला या फिर कुछ भी जो हमने रूल पढ़ा है कि मेटल एटम को जैसे भी लिखना है वो हम नहीं यूज करेंगे. वी विल राइट सिंपल प्लैटिनम एट द एंड while after writing the name of the ligands. While writing the name of the ligands, we see that there is ammonia ligand which will be written as amine, and there is a chlorine which will be written as chloro. अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 अमीन है और 4 क्लोरो है, तो जो डाई वर्ड है उसको हम कंसीडर ना करके अल्फाबेटिकली देखें क्लोरो और अमीन में, तो जो अमीन है वो अल्फाबेटिकली पहले आएगी. सो वी विल राइट डायमीन टेट्राक्लोरो प्लैटिनम 4. The oxidation state will be 4, which is written in Roman numerals inside the parenthesis. So this is a neutral molecule. The total charge on the ligand is -4. Therefore, the platinum oxidation state is +4, जो कि हमने बहुत अच्छे से अभी समझा और किया. Then we have another coordination entity which is cationic as well as anionic in nature. हम देख सकते हैं कि ये cationic है, ये anionic है. तो इसका स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे, देखिए PTNH3 whole twice Cl2. अब इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने रूल ऊपर फॉलो किया सेम इट विल बी फॉलोड फॉर द लाइगेंड्स, जैसे डायमीन डायक्लोरो प्लैटिनम. अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज जो 4 पहले लाइगेंड्स थे ऊपर वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी में वो अब 2 बाहर चले गए हैं, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आ जाएगा. पहले 4 थी अब 2 रह गई. सो जो क्लोराइड है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको हम उसके लिए हम जो रूल है हमारा लाइगेंड्स का वो हम नहीं यूज करेंगे, एंड इट विल बी रिटन एज क्लोराइड ओनली. Here the number of ions and atoms are the same. वो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स और आयंस हैं वो सेम है. जैसे यहाँ पे 4 क्लोरीन थे, 2 अमोनिया थे, 1 प्लैटिनम था. नंबर ऑफ एटम्स और आयंस आर द सेम. However,
the brackets as well as the different oxidation number of the platinum results in a very different name. जब कुछ brackets और parentheses चेंज हो गई तो उससे क्या होगा, different oxidation number of the platinum चेंज हो जाएंगे और एक different name को अराइज हो जाएगा, एक डिफरेंट नेम अराइज हो जाएगा इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का एज कंपेयर टू द अबव कोऑर्डिनेशन एंटिटी.